Good evening, students. Welcome back for another amazing session on gravitation. We have been discussing gravitation, acceleration due to gravity. Then we talked about thrust and we discussed the pressure, why you see the knives are having sharp edges, and the pressure which we defined was thrust per unit area, students. And many examples were given why the tires of the trucks are very wide, because the pressure is inversely proportional to the area. And you see how the camels are able to walk easily on the sand. So what is the story in all these things we have discussed with you? At the same time, we have told you last time, students, that liquids and gases also exert pressure. Yes or no? Tell me. Tell me, do the Yes, liquids exert pressure? Yes or no? What is your answer, students? That the liquids exert pressure? yes, sir. Fluids are those which can flow. Gas is a fluid, liquid is a fluid. And this, they have a pressure. How do you know they have a pressure, student? You have done an activity where if you take a bottle full of water, make a hole, what happens? Water comes out of the bottle from the hole, which shows that there is a pressure which is exerted by the liquid, by the water, you see. And as you have been told, that the pressure exerted by the liquid is due to the weight of the liquid, is due to the weight of the liquid, students. The weight is the force with which earth is attracting the objects toward itself, that we have already discussed. So the deeper you go, will the pressure be more or less, students? Tell me. The deeper you go inside the sea, the pressure will be more The or pressure less? will be more. More, because the weight of the liquid on that layer will be more, students. And we have performed an activity to show that. So this is already known that the height of the liquid column will decide the pressure of the liquid. Otherwise also the formula is known to us: P is equal to H rho g, where H is the height, and it also depends on the density of the liquid, student. Density of the liquid. Rho is the density of the liquid. So we are saying that these fluids have pressure, and this pressure depends on two things. What are the two things? What are the two factors on which the pressure of the fluid depends, students? What are the two factors on which the pressure of the fluid depends? Tell me. You are saying, what you are saying, students, that the pressure, pressure which was nothing but thrust per unit area. Pressure is thrust per unit area. Yes or no? And the pressure depends on which factor? What is the factor on which the pressure of the fluids will depend? Pressure of the fluids will depend on which factor, student? Can you tell me the factors? What are the factors on which the pressure of the fluid depends, students? Answer the question. Keep on interacting with me. That is what science is all about. Learning. Science is all about thinking. What are the factors on which the fluid pressure depends? Fluid pressure depends on which factor, student, which we have been talking with you. One, we told you the depth, or what you talk of, height of the liquid, height of the fluid, which is also related with the weight of the fluid. I mean, then the weight increases. Weight of the fluid is more the deeper you go. The deeper you go, more layers of water are on the top, so the weight is more. And second important factor will be the density of the fluid. Density of the fluid. Yes or no, students? Yes, sir. So certain liquids have higher density, certain liquids have a higher density, students. Naturally, their pressure will be more, students. Their pressure will be more. So we are aware of this now, that liquids exert pressure, gases also exert pressure. You know, there's a pressure of the atmosphere. Pressure of the atmosphere, the gases are exerting a pressure, students. We are now moving to another important topic, which is the talk of the day today, which is very important concept, student.
Buoyancy, student, buoyancy. What is buoyancy, students? What is buoyancy, students? You know that? Have you ever gone to a swimming pool? Tell me. Who has been swimming? Are you swimming? Tell me. Are you swimming, students? ठीक है? Did you ever go for swimming? Yes or no? Tell me. Yes, sir. You have gone to swimming. Okay. How do you float on water? You are not sinking in the water. You are floating. You are floating on water. Yes or no? Tell me. You are in a swimming pool, student, in a swimming pool. Anya, you are in a swimming pool. ठीक है, swimming pool. What happens? You are floating. You are floating. You are not sinking. You are floating. Yes or no? So here you are floating. Do you experience that your weight appears to be less? Do you experience that your weight appears less when you are inside the water? Your weight appears less to you. Do you feel lighter? Tell me, do you feel lighter when you are inside the water? Yes, sir. Okay. Now, why will you feel lighter? Why will you feel lighter? See what we are trying to tell you. What do you do? Students, you take a bucket. You have a bucket, student, and you put the bucket inside the water. Inside the water. When this bucket is inside the water, you will experience that what has happened to the weight of the bucket, student. What do you feel? That the bucket weight appears less. When bucket is completely dipped inside the water, what happens? It appears lighter to you, yes or no, from outside. You can try this. You can try this. Those people who have drawn water from the well, what happens? This is your well. This is a well, student. There is a water inside this. This is a well. There is a water. What I do? Here is my bucket, student. You have a bucket. You put inside the water, student. ठीक है? What will you experience? What will you experience, student? So what will you experience, student, if you are drawing a water from a well? This is my well. You will find that what do you find, student? What you find here? Tell me, what you find? That this bucket weight becomes less when it is dipped, immersed in the water. Yes or no? Yes or no? Why will the weight become less when it is immersed in water? That is a question before us. That is a question before us. Why do you feel lighter when you are swimming on the swimming pool? What is the reason that you are able to float on water? What is the reason you are able to float on water? What is the reason that a ship floats on water? Ship floats on water. But student, what you will find, if I take iron nail, it sinks in water. Iron nail sinks in water. Tell me, are these things you have observed or not? Have you observed these things or not? What is the reason all this? Can we answer these questions, student? That is one thing is clear, that when you are trying to put or immerse anything in a liquid, it is applying a upward force, upward pressure. Is it true or not? That when you try to put anything in a liquid, student, there is an upward pressure which is exerted by the liquid. So there is a buoyancy force which is caused by the pressure exerted by the fluid in which the object is immersed. What we are trying to say, whenever you are trying to immerse any object in a fluid, student, there is an upward force which is acting on this. So this is what we call as a buoyancy, student. This buoyancy means there is an upward force, student, which is
exerted by the fluids, exerted by the fluids. So what we are saying, you are going inside the water, but water is also exerting an upward force. Water is exerting, there is an upward force, student. What we are saying, there is an upward force. There is an upward force, student, exerted by the fluids, exerted by the fluids or the liquids when you immerse an object, when an object is immersed in it. Yes or no? Do you experience it? Do you experience it, student? Yes, sir. For example, student, what I can say, so buoyancy is the force that causes objects to float. We are saying there is a buoyancy. Buoyancy means there is an upward force exerted by the fluids when we try to immerse an object in it. You are swimming, water is exerting an upward force on you. Water is exerting an upward force on you, which we are calling as buoyancy, student, buoyancy. So that is the reason we are able to float on the water, students. And the pressure, this is due to the pressure exerted by the fluid. This is due to the pressure exerted by the fluid means the water. And this buoyancy force is always pointing upwards because the pressure of the fluid increases with the depth. As you go deeper, the pressure increases. Therefore, when you try to immerse anything in liquid, there is an upward force which is exerted by the fluid, student, and it is acting in upward direction. Where it is acting in upward direction. Is it right or wrong? Tell me. The buoyant force is there. You are saying that the fluids have buoyant force. I am saying all the fluids have buoyant force and upward force. And this is always pointing upward. This is always points upward. It points upward, students. Because the pressure of the liquid keeps on increasing with the depth. Because the pressure of the liquid, P of the liquid, increases with the depth. As you go deeper, pressure is more. Increases with depth. So it's important that liquids have a buoyant force. Every liquid has a buoyant force. We'll see on what factors it depends again. And you, as I said, the pressure exerted by any liquid depends on rho GH. Student, rho is the density of the liquid. Rho is the density of the liquid. G is the acceleration due to gravity. That is due to the gravitational pull of the earth. And H is the height, which we are saying height of the column. Has depth. H means the depth or height of the column. The deeper you go, the more is the pressure. So this is your depth. And G is the acceleration due to gravity, which we already know about it. So the pressure will be more as you go deeper. That is the reason there is a buoyant force which is exerted by the fluids on all the objects when they are immersed in a liquid. Interesting thing, here I have shown a diagram of this, student. What I am trying to show, students, what I am trying to show, here is an object, student. Can you see this object? This is an object. And I have partially immersed it. You can see there's a half is inside the water, half is outside this. The gravity is pulling the object downwards. What is the gravity? The weight of the object is acting downward. Yes or no? Tell me. You are saying the weight or here mass of the object. Students, it is acting downward. Vertically downward, that we already know. Weight acts vertically downwards. And the liquid is exerting, the fluid is exerting, student, a buoyancy force which is in the upward direction, that is what we call as buoyancy.
is called as buoyancy. So the liquid is exerting a force, student, in the upward direction. The liquid, as you can see, this is the buoyancy. The liquid is exerting, student, a force in the vertically upward direction. Upward direction. The two thing forces are opposing each other. The two forces are opposing each other. Are you, do you agree with this, or you have anything doubts on this? Tell me. I hope you understood the weight of the body is acting Sir. vertically downward. When you are swimming, your weight is vertically downward, student, but water is applying an upward force, which we call as the buoyancy, which we call as the buoyancy. Because of the pressure of the water. Water has a pressure, and as you go deeper, the pressure increases. Therefore, there is a upward force which is exerted on the objects when you immerse them in water, student. That is what we are calling as buoyancy. Buoyancy clear to you, students? Any doubt? No doubt, sir. Okay, I thank you for that. We can perform an activity, student. We can perform an activity to show that there is a buoyancy, there is an upward force which is exerted by the fluids when you immerse the objects in the fluid. What we are going to do now? See, take an empty plastic bottle, close the mouth of the bottle with an airtight stopper, put it in a bucket filled with water. You see the bottle floats. All right, students, what you are doing here, students? This is my bucket. Student bucket. Chalo, this is our bucket, student bucket. What the bucket has got, student? Water. ठीक है, डाल दिया पानी आपने बाल्टी में. You are doing this activity at home. What do you do? आपके पास एम्प्टी बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक की एम्प्टी बॉटल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम सीलिंग दिस बॉटल फ्रॉम द टॉप, स्टूडेंट. यार इसके अंदर क्या होगा बॉटल में? टेल मी व्हाट इज इनसाइड द बॉटल व्हेन आई क्लोज दिस. दिस हैज एयर. एयर तो है ना बॉटल में, यस और नो? बोलिए, एयर है? Yes, sir. अब क्या करेंगे बताओ कि आपने बॉटल ली और उसके माउथ को बंद कर दिया. अब ये क्या कर रही है? जब आपने पानी में रखा तो ये क्या सिंक कर गई या फ्लोट कर रही है? जल्दी से बताइए. एम्प्टी बॉटल, बोलो. When you put an empty bottle, what happens? It is floating on water. सिंक थोड़ी कर रही है. Yes, sir. It will float. तो ये फ्लोट कर रही क्योंकि इसका वेट कम है. इस वेट इज लेस देन द बॉइंट फोर्स. इसका वेट क्या है? लेस देन द बॉइंट फोर्स है. यहां पर इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है. क्या नीचे एक्ट कर रहा है? इसका वेट बॉटल का डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड. और तुमने कहा कि सर इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लग रही है. क्या लग रही है? अपवर्ड. वाटर क्या एक्ट कर रहा है? तो बॉइंट फोर्स जो है वो कहां लग रही है स्टूडेंट? वर्टिकली अपवर्ड. बोलो ये सही है या गलत है? जल्दी बताओ. हमने ठीक लिखा, गलत लिखा? तो इसका वेट नीचे चल रहा है और बॉइंट फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है. तो वेट कम है. वेट जो है स्टूडेंट इसका लेस है देन दिस बॉइंट फोर्स. तो क्या करेगी ये बताओ? ये फ्लोट करेगी, यस और नो? जल्दी से बताओ. कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट. तो बॉटल फ्लोट कर रही है स्टूडेंट, बॉटल फ्लोट कर रही है. अब आपने क्या किया फिर? अगर आप चाहते हैं कि इस दिस बॉटल शुड बी इमर्स्ड इन वाटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. तो आप क्या करते हो? इसको पुश करते हो अपने हाथ से. पुश करो बॉटल को, मतलब फोर्स अप्लाई करो अपने हाथ से. ऊपर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो.
तो अगर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, बताओ फिर क्या हुआ। बॉटल को पुश किया, फोर्स अप्लाई की स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। तो ये इमर्स हो गई वाटर में, हुई, बोलो यस और नो, इमर्स हो Yes. गई। लेकिन एज सुन एज यू विड्रा द फोर्स, विड्रा द पुश, व्हाट हैपेंस, इट कम्स बैक। फिर आपने विड्रा कर लिया फोर्स को स्टूडेंट, विड्रा कर लिया, तो फिर क्या हुआ, बॉटल अगेन अगेन क्या हुआ, वापस आ गई, कम्स ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस, फिर वापस आ गई सरफेस के ऊपर, टॉप ऑफ सर्फेस, तो फिर फ्लोट कर रही है। तो दैट मीन्स इफ यू वांट टू कीप दिस बॉटल, इट बाउंसेस बैक, तो ये बाउंस बैक कर गई, बॉटल क्या कर गई, बाउंस बैक कर गई स्टूडेंट्स। बॉटल बार बार बाउंस करती है, तो आप जितना ज्यादा डीपर जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। The more deeper you take the bottle, more pressure you have to apply because the pressure keeps on increasing as you go down. बताइए नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, तो नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, यू हैव सीन इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर, तो फिर आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रेशर को, एज सुन एज यू विल रिलीज द प्रेशर, द बॉटल विल कम बैक स्टूडेंट, इट इज रिलीज्ड। सो देन how will you, if you want to keep or immerse a bottle in a liquid, what you have to do, if you want to immerse a bottle in a liquid student, क्या करेंगे फिर आप, तो कंडीशन क्या है, फिर मैंने क्या किया कि व्हाट आई डू, ये बॉटल है, ये दिस इज आवर बॉटल स्टूडेंट, तो मैंने इसके अंदर फिर वाटर फिल कर दिया। अब क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। अब क्या होगा, इसका वेट बढ़ गया, बोलो वेट बढ़ गया, तो फिर अब क्या करेगी, ये सिंक कर जाएगी, तो कर सकती है सिंक इफ आई इंक्रीज द वेट, इफ द डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन द अपवर्ड buoyant फोर्स, देन इट विल सिंक। बोलो सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। तो अब हमने देखा कि देर आर, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, आपने क्या देखा, यू हैव सीन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोटिंग ऑन वाटर, certain objects students are floats on water, and certain objects, you see certain objects sink in water. So which objects will, students, which objects will float on water, which objects will sink in water, जल्दी से बताइए, what do you think, जल्दी से बताइए कौन से ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएंगे और कौन से ऑब्जेक्ट वाटर पे फ्लोट करेंगे। नीचे की जो फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। आपने ये कहा कि जो आपकी बॉटल है यहाँ पर स्टूडेंट, जो बॉटल है, बॉटल के ऊपर डाउनवर्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच इज अट्रैक्टिंग योर बॉटल। और अपवर्ड में क्या हो रहा है स्टूडेंट, अपवर्ड में क्या हो रहा है स्टूडेंट, अपवर्ड में क्या हो रहा है, तो ये जो वाटर है, वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल स्टूडेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए बॉयंसी, बॉयंट फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स है, बॉयंट फोर्स। तो दोनों फोर्सेस आपस में अपोज कर रही हैं। तो अगर अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है, अगर अपवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर है स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं अगर अपवर्ड फोर्स which is upward force, अगर buoyant force, if buoyant force is greater students than the gravitational force experienced by the bottle, then the gravitational force experienced by the, then the gravitational force of the bottle, which is nothing but weight of the bottle, which is m into g, weight of the bottle is more than this, what will happen, if buoyant force is more, then object will be floating, object will float, object will float, yes or no, बताओ ठीक लिखा हमने, tell me। Yes. or if the
gravitational force is more than the buoyant force, object will sink, object will sink. ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपने कहा कि बहुत सारे तो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंक कर जाते हैं। जैसे कि आपने कहा सर एम्प्टी बॉटल हमने डाली और प्लास्टिक की बोतल डाली, एम्प्टी बॉटल प्लास्टिक बॉटल डाली, बैलून्स जो होते हैं भरे हुए हवा से उनको आपने पानी में डाला, वो तो फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन एक नेल जो है, छोटा सा पिन, अगर मैंने एक पिन रख दिया पानी के ऊपर, वो तो सिंक कर गया, कर गया सिंक? बोलो यस और नो। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस स्टूडेंट, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस नाउ? कि एक चीज तो फ्लोट कर रही है, एक चीज सिंक कर रही है। क्या ये सिर्फ इसके मास पे ही डिपेंड करती है या कोई और भी फैक्टर है? इज देयर एनी अदर फैक्टर स्टूडेंट्स which will decide whether an object will be floating or sinking? तो इसी के लिए हम अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट डेंसिटी की। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ डेंसिटी। क्या होती है स्टूडेंट? आप बताइए मुझे, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? डेंसिटी क्या होती है? लेट मी टेल यू, हु इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज डेंसिटी? बताइए डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी we will give a lecture on density also to you in this lecture itself. I mean, in the gravitation. Here I am only saying one thing at present, that if the density of the object is more than density of the water, student, object will sink. Object will sink. If the density of the object is less than density of the water, then it will float. ठीक है? An object floats in water if its density is less than water. ये मैं कह रहा हूं इस टाइम। क्या कह रहा हूं आपको? मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? व्हाट आई एम सेइंग, इफ द स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं स्टूडेंट्स? तुम्हें कलर को चेंज कर देता हूं। लो, अब मैंने तुम्हें क्या बताया स्टूडेंट्स? मैं ये कह रहा हूं, क्या क्या कह रहा हूं तुम्हें? अगर डेंसिटी जो है स्टूडेंट, डेंसिटी, मैं ये कह रहा हूं, अगर डेंसिटी जो है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, चलो ऊपर, क्योंकि वो बोर्ड वहां पे लिख नहीं रहा सही तरीके से। मैं ये कह रहा हूं कि इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इट विल फ्लोट। ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इट विल फ्लोट ऑन वाटर। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो शिप जो होता है वो तो फ्लोट कर रहा है। तुम कह रहे हो आयरन नेल सिंक कर गया। आयरन नेल तो बहुत छोटा है शिप से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी जो है आयरन नेल की ज्यादा है। किससे? वाटर से। तो आयरन नेल सिंक कर गया स्टूडेंट। यहां पे मैं कह रहा हूं आयरन नेल किस लिए सिंक कर गया? तो आपने कहा सर जो आयरन नेल की डेंसिटी है, आयरन नेल जो है उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है? मोर देन वाटर, मोर देन वाटर। तो अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो स्टूडेंट वो सिंक कर जाएगा। क्या करेगा? पानी में सिंक कर जाएगा। बात समझ में आई? टेल मी यस और नो। जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। विधि तेरे को समझ में आ गया? टेल मी यस और नो। यस सर। मतलब एम्प्टी चीजें जो मैंने डाली थी, एम्प्टी जो भी बॉटल डाली, बैलून डाला, ये डाला, तो वो साइज में तो बहुत बड़े दिख रहे थे, बट देयर डेंसिटी वाज लेस देन वाटर, देयरफॉर दे आर फ्लोटिंग ऑन वाटर। लेकिन तुमने एक छोटा सा पिन डाला था, एक नेल डाला था, पिन डाला था, दैट सैंक इन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ दैट आयरन पिन नेल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर।
और डेंसिटी का फार्मूला हमें पता ही है स्टूडेंट, कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए आपने मुझे बताया स्टूडेंट्स की डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। इसके बारे में फर्दर डिस्कशन होगा कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, तो वो तो फोर्स, कितने पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, कितने अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के अंदर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जो चीजें बहुत स्ट्रांगली पैक हो जाती हैं, बहुत नजदीक नजदीक पार्टिकल्स से पैकिंग हो जाती है, जिन चीजों के ये बने हुए स्टूडेंट, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होने वाली है। जैसे कि एज यू से सॉलिड हैज ए हायर डेंसिटी देन लिक्विड एंड लिक्विड हैज ए हायर डेंसिटी देन गैस। तो इन चीजों का हमें पता है ऑलरेडी। तो हमने पढ़ा था एक चैप्टर में कि जो पैकिंग होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड की गैस से, वो हम ऑलरेडी बताया था। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट वी कॉल इट डेंसिटी स्टूडेंट। तो हमें समझ में आएगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से वो तो सिंक कर गया, इफ द डेंसिटी इज लेस देन वाटर वो फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे ये हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर। तो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। आपने क्या किया, देखो एक एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी में क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने ये देखो हमारे पास स्टूडेंट व्हाट वी हैव इज ए, यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है स्टूडेंट, इसके अंदर वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, देयर इज अनदर बीकर स्टूडेंट। अब क्या किया मैंने, ये यहाँ पे भी वाटर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वाटर है, हमने एक कॉर्क लिया, आई एम टेकिंग ए कॉर्क एंड आई एम टेकिंग एन आयरन नेल। इन दोनों का मास सेम है स्टूडेंट, मास कितना है, सेम, दोनों का सेम मास लिया मैंने। आयरन नेल का भी मान लो ये 100 ग्राम है, तो ये भी 100 ग्राम है, ठीक है, दोनों सेम मास के ले लिए। अब एक मैंने यहाँ पे कॉर्क रखा, एक में मैंने क्या किया, कॉर्क है, ये क्या है स्टूडेंट, कॉर्क। चलो अब देखते हैं, यहां पर मेरे पास ये कॉर्क है स्टूडेंट, और यहाँ पे मेरे पास एक आयरन नेल है स्टूडेंट, ये क्या है, आयरन नेल। दोनों का मास कितना है स्टूडेंट, 100 ग्राम एंड 100 ग्राम। अब क्या होगा, टेल मी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स। हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, क्या देखा, व्हाट वी ऑब्जर्व स्टूडेंट्स इन दिस केस, बता, कैन यू टेल मी स्टूडेंट व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट हियर, बोलिए क्या होगा, क्यों होगा, व्हाट विल हैपन एंड व्हाई। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे वाटर पर, यस और नो, जल्दी बताइए। आने, व्हाट विल हैपन, बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट ऑन वाटर, और व्हाट विल हैपन, या दोनों सिंक करेंगे या क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। हाँ, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कार्क फ्लोट्स। So cork will float and the iron nail will sink. वेरी गुड। अब रीजन भी बताएंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट। कुछ समय के बाद आपने कहा सर ये लो, ये पिन तो नीचे आ गई, ये सिंक हो गई, क्या हो गई, सिंक कर गई। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, आपने क्या आंसर दिया स्टूडेंट्स अब इसका, व्हाट इज द, But due to the density. वेरी गुड, ओ माय गॉड, यू सच एन इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। किसकी डेंसिटी ज्यादा है जल्दी से बताइए, ड्यू टू, यू आर सेइंग, Iron nail की density ज्यादा है. किसकी ज्यादा है, Iron nail. okay, correct answer given by Vidhi, due to difference in
densities of the objects due to difference in densities. So there is a difference in the due to difference in densities of iron nail and cork. In other words, students, you are saying that iron nail density of iron nail is more than density of water. Therefore, it sinks. बोलो मैंने सही लिखा? फिर आपने मुझे बताया स्टूडेंट्स Yes, की sir. डेंसिटी ऑफ कार्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर इट फ्लोट्स. तो दैट मीन स्टूडेंट हमें कुछ नॉलेज हो गई कि इफ यू वी वांट थिंग्स टू फ्लोट ऑन द वाटर वी शुड दे शुड हैव ए लोअर डेंसिटी देन द वाटर. इफ वी आर एबल टू डिक्रीज देयर डेंसिटी देन वी कैन फ्लोट देम. और डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? We'll see that mass per unit volume. तो डेंसिटी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स वॉल्यूम के. मान लो मास तो सेम था, यहां पर मास तो दोनों का सेम है, देख रहे हैं 100 ग्राम लिए थे हमने, लेकिन अब वॉल्यूम अगर मैंने बढ़ा दिया स्टूडेंट तो डेंसिटी कम हो जाएगी. तो हमने अगर वॉल्यूम को लार्ज कर दिया स्टूडेंट, सेम मास था और अगर उसके वॉल्यूम को मैंने लार्ज कर दिया तो डेंसिटी क्या हुई स्टूडेंट? बढ़ी या कम हुई? टेल मी व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी स्टूडेंट? कम हुई, ज्यादा हुई? वॉल्यूम बढ़ा दिया, आई हैव इंक्रीज द वॉल्यूम, विल द डेंसिटी बी मोर और लेस स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए, डेंसिटी बढ़ी या कम हुई? सोच कर बताना है स्टूडेंट, तुम्हें सारे आंसर आते हैं, यू नो ऑल द आंसर्स. जल्दी से बताइए कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास सेम था, वॉल्यूम मैंने इंक्रीज कर दिया, उसकी ऐसी शेप बना दी, आई चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट इट वॉल्यूम बिकम्स लार्ज, तो बताइए अब उसकी डेंसिटी बढ़ी हुई या कम हुई? जल्दी से बताइए, बताओ आने क्या हुआ उसका डेंसिटी? वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी को क्या हुआ? कम हुई, ज्यादा The हुई? density will decrease. डिक्रीज. वेरी गुड. तो डेंसिटी कम होगी, उसकी डेंसिटी लेस हो गई, और मैंने डेंसिटी उसकी इतनी लेस कर दी कि पानी से भी कम हो गई. वाटर की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू हम बताएंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है. वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है. हाँ, इससे कम हो जाएगी डेंसिटी तो वो पानी के ऊपर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. तो आपने शिप्स की शेप देखी है, जो शिप्स होते हैं उनकी शेप देखिए कितने बड़े होते हैं, तो उनका हमने डेंसिटी कम कर दिया है, वॉल्यूम बढ़ा दिया है, वॉल्यूम बहुत लार्ज कर दिया ऑब्जेक्ट्स का. जब ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को लार्ज कर देंगे स्टूडेंट तो वो क्या करेंगे? उनकी डेंसिटी लेस देन वाटर कर देंगे, तो वो क्या करेंगे कि सेम मास को उसकी डेंसिटी मैंने कम कर दी वाटर से, तो फिर वो फ्लोट करना शुरू कर देगा. क्या करेगा? फ्लोट करना शुरू कर देगा. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे फिर उनके आंसर वी हैव बीन एबल टू गिव. फर्स्ट क्वेश्चन टू यू स्टूडेंट, क्वेश्चन 1, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट? टेल मी, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर और ऑन फ्लूइड्स? इसका क्या आंसर लिखा आपने? जल्दी से बताइए. व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट? व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी से, क्या आंसर दे रहे हैं इसका? बिकॉज द फ्लूइड्स एक्सर्ट a buoyant force opposite to the weight of the object acting vertically downward. तो वो क्या कर रहे हैं? फ्लोट करते हैं. हम स्विमिंग करते हैं, when we swimming we are floating. Question 2, does a higher density float or sink? जल्दी से बताइए आंसर. What is your answer students? क्या आंसर मिला? अभी तो कर दिया हमने इसका आंसर. वी हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स. डज ए हायर डेंसिटी फ्लोट और सिंक? इफ डेंसिटी इज हायर देन ये क्या करेगा? सिंक कर गया. क्वेश्चन 3,
हाउ डू यू मेक सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट? हम जल्दी से बताइए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग आई वांट टू मेक इट फ्लोट, हाउ विल व्हाट विल यू डू? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर, यही तो हमारा लेक्चर्स हैं सारे। ऑल ओवर लेक्चर्स आर बेस्ड ऑन आंसरिंग क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स, so that you are interacting with me and you are learning everything student। रट्टेबाजी नहीं करनी, लर्न करनी है, साइंस को लर्न करना। जल्दी से बताइए, आंसर आने हैं इसका। हाउ डू यू मेक ए सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट? व्हाट इज योर आंसर? क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट जो सिंक कर रहा था, मास उसका सेम है, तो मैं उसको क्या करूंगा कि वो So we can change its shape to increase the volume. यस यस, करेक्ट आंसर। तो आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। तो उससे क्या हुआ स्टूडेंट? उसकी डेंसिटी लेस हो गई, मतलब उसकी डेंसिटी को आपने लेस कर दिया देन वाटर, देन वाटर। ठीक है, अब क्या करेगा ये? ऊपर सिंक नहीं करेगा। व्हाट डज डेंसिटी नीड टू फ्लोट? ये तो क्वेश्चन हम आंसर कर चुके, आपको पता ही है किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी कम है। लेस डेंसिटी जो होती है फ्लोट करती है और नहीं करती। अब आपने एक ऑब्जर्वेशन देखी है स्टूडेंट, आइस तो सॉलिड है। बोलो, आइस सॉलिड है क्या? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में, बहुत मजा आने वाला है। बताइए स्टूडेंट, आपने आइस के क्यूब्स देखे हैं? जल्दी से बताइए, बोलो, आइस क्यूब्स देखे फ्रिज में से? Yes, sir. अब आपने यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक है, पी रहे हैं आप ग्लास में, ये मेरा ग्लास है स्टूडेंट, इसमें कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, आपके पास ये लेमन वाटर है, चलो आपने इसमें आइस के क्यूब्स डाल दिए। क्या डाले? तो सॉलिड की डेंसिटी तो ज्यादा होती है लिक्विड से, यस और नो? जल्दी से बताइए। आपने ये सीखा कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो मोर देन लिक्विड होती है। हमने ज्यादा सभी केसेस में देखा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो मोर देन लिक्विड है। अब बताइए कि जब हमने आइस क्यूब डाले थे तो वो नीचे चले गए थे या ऊपर थे? जल्दी से बताइए। आइस क्यूब जो तुमने डाले वो फ्लोट कर रहे थे या सिंक कर गए थे? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्लोट कर रहे थे। हैं? फ्लोट कर रहे थे। फ्लोट कर रहे थे। अरे ये फिर क्या हुआ? अभी तो हमने कहा कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो फ्लोट कर रहे थे। स्टूडेंट, फ्लोट कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये फ्लोट कर रहे थे आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये आइस क्यूब है, ये क्या है? आइस क्यूब। तो आइस क्यूब तो फ्लोट कर रहा है। आपने कहा कि आइस क्यूब जो है सर फ्लोट करता है, तो ये तो सॉलिड है लेकिन फिर भी फ्लोट करता है। अब इसका रीजन बताएंगे हम। व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? क्वेश्चन आ गया पेपर में, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब बताइए इसका क्या आंसर है स्टूडेंट आपका? व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। स्टूडेंट, आइस वाटर पर फ्लोट क्यों करती है? बोलिए, आइस वाटर पर फ्लोट क्यों करती है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या हुआ? आइस के क्यूब की डेंसिटी ज्यादा है या कम है वाटर से? जल्दी से बताइए। डेंसिटी, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है स्टूडेंट, इज इट मोर और लेस देन वाटर? जल्दी से बताइए। Sir, it is less than लेस water. देन वाटर, बिल्कुल सही है, तभी तो फ्लोट करेगी। तो फिर अब क्वेश्चन ये आ गया कि आइस तो सॉलिड है, फिर इसकी डेंसिटी कम क्यों हो गई? इसकी डेंसिटी कम क्यों हो गई आइस की? ये तुम्हें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत जगह पूछा जाता है कि आइस तो सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, दैट इज द रीजन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस, इसीलिए क्या होता है कि जब बहुत इन स्वीयर विंटर, आपने देखा होगा कि जो वो लेक्स होती हैं उनके ऊपर बर्फ जम जाती है, क्या होती है? आइस जम जाती है, लेकिन नीचे पानी रहता है। नीचे क्या रहता है? वाटर। अगर सारा का सारा पानी जम जाए तो खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अगर एक रिवर है, सोचिए अगर एक रिवर का सारा पानी जम जाए स्टूडेंट, सॉलिड बन जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो एक्वेटिक लाइफ बचेगी क्या? जल्दी से बताओ।
तो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, सी में क्या होते हैं, एक्वेटिक एक्वेटिक लाइफ है, वहां पर फिश है और भी बहुत सारे हैं लिविंग, तो वो तो सारे मर जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, बर्फ में ही जम जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बर्फ की लेयर्स ऊपर रहती है और नीचे वाटर रहता है, क्योंकि डेंसिटी आइस की कम है पानी से, आइस बनेगी तो वो ऊपर आ जाएगी, किसके, लेक्स के ऊपर आइस जम गई, नीचे पानी है, उसी में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। बोलो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स इन विंटर, यस और नो? करती है सर्वाइव, नहीं तो सारे ही मर जाएंगे। बोलो यस और नो? तो इसका रीजन क्या है कि उनके ऊपर टॉप लेयर्स पर आइस बनती है, नीचे वाटर रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत जहाँ कोल्ड टेम्परेचर होता है नीचे, तो वो जो एक्वेटिक जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं, दे गो डीप इनसाइड द वाटर। ऊपर आइस है, नीचे वाटर रहता है, तो आइस फ्लोट कर जाती है ऊपर, आइस फ्लोट कर जाती है। इसका कारण है स्ट्रक्चर ऑफ आइस स्टूडेंट, इसका रीजन बता रहा हूं मैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस होता है स्टूडेंट, आई एम सेइंग स्ट्रक्चर ऑफ आइस, जब वाटर लिक्विड से आइस बनती है स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इट हैज ए केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर केज लाइक होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं स्टूडेंट, विच हैज एम्प्टी स्पेसेस। तो केज टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसमें एम्प्टी स्पेस रह जाती है जिसमें एयर होती है, एयर रह जाती है। तो इस तरह से जब वो बनता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब आइस फॉर्म होती है स्टूडेंट, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आइस का जब फॉर्मेशन होती है वाटर से, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर केज लाइक होता है, उसमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और उसमें एयर चले जाती है, तो उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस मोर हो जाता है। तो इस तरह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है स्टूडेंट। क्या होती है? आई एम सेइंग डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो जाती है? लेस देन वाटर। ये समझ में आ गया आपको सारा कि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है स्टूडेंट, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोलो ये सब समझ में आ गया? सारे क्वेश्चंस के आंसर हुए? Why does ice floats on water but sink in alcohol? लेकिन अगर अल्कोहल में आइस को डालोगे तो वो सिंक कर जाएगी। अल्कोहल, वो जो वाइन विस्की में आइस डालते हैं वो नीचे बैठ जाती है, और जो आपने पानी में डाली तो वो ऊपर फ्लोट करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इट मीन्स टू से कि अगर आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आ गया आपको, आइस फ्लोट ऑन वाटर बट सिंक इन अल्कोहल, इसका मतलब आइस की डेंसिटी अल्कोहल से ज्यादा है। व्हाट इट मीन्स? डेंसिटी ऑफ आइस is more than डेंसिटी ऑफ अल्कोहल। तो आइस की डेंसिटी अल्कोहल से ज्यादा है स्टूडेंट, तो वो सिंक कर जाएगी। तो अब हमें समझ में आई स्टूडेंट, क्या समझ में आई कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से दैट विल सिंक, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। आपके जो स्कूल के बैग्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल बैग्स आप ले जाते हो स्कूल में कि नहीं? जल्दी से बताइए। यू आर कैरिंग ए स्कूल बैग? Yes, यू आर कैरिंग ए स्कूल बैग। उसके जो फ्लैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं या कि थिन होते हैं? जल्दी से बताइए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होते हैं? वो कैसे बने जाते हैं? अगर जो आपके स्ट्रैप्स हैं बैग्स के, वो कितने कैसे बने होते हैं आपने देखा? वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ब्रॉडर क्यों होते हैं? वो थिन क्यों नहीं होते? अगर एक धागे के मैं बना दूं, धागे के बना दूं मैं, अगर आपके बैग के ऊपर मैं धागे के वो बना दूं स्ट्रिंग्स टाइप और स्ट्रॉन्ग, तो क्या वो कंफर्टेबल होंगे आपके लिए इतनी बड़ी बुक्स को कैरी करने के लिए? जल्दी से बताओ। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा स्टूडेंट? तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वो नैरो हो जाएंगे, एरिया कम हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा, तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तो वो आपके कंधों पे जब डालोगे तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। और आपने देखा है कि जितने भी बैग्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, जिनके अंदर वेट रखा जाता है, उनके स्ट्रैप्स कैसे होते हैं? ब्रॉड एंड वाइड। बोलो होते हैं या नहीं होते?
बोलो, यस और नो। Yes, sir. जो ये माउंटेनियरिंग और जितने भी ऊपर जाते हैं उनके बैग्स के देखना शेप्स कैसी होती हैं, जो स्ट्रैप्स होते हैं दे आर वाइडर। अगर इफ आई विल मेक देम नैरो एंड थिन स्टूडेंट, उनका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा एंड देन इट विल बी, दे विल कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स फॉर क्लाइंबर्स and for school bags also. If we will make the flaps student thin and strong strings, the pressure will increase very large, and therefore they will give a large amount of pressure to us, and then we will feel very very great difficulties. Therefore students, in this lecture we have been able to answer some vital questions today. What is buoyant force, and why certain objects are sinking and certain objects are floating, and why the objects weight appear less when they are immersed in water, students. So we have explained to you there is a buoyant force which are exerted by the fluids, which is acting vertically upward, and the weight of the body is acting vertically downward due to gravitational force of the earth. And the density is very important. If the density of objects is more than the density of the water, it will sink. If the density of object is less than water, it will float. Therefore, if it is possible that a sinking object can be made to float by changing its density, or in other words by changing its volume. It's not the mass, mass is same, but I will increase the volume. I will increase the volume. And some important questions, that why ice floats on water, student? Because the density of ice is less than water. Because when ice is formed from water, the structure of ice is cage-like, expands, the volume becomes more, and therefore the density of ice is less than water. Hence, ice floats on water. That is why during very, very cold and severe conditions in the lakes and rivers, there is a layer of ice on the top of them, and water down them, so aquatic life can survive, and the aquatic life go deeper in the lakes and rivers during very, very, very cold seasons when the water freezes. So I hope I have been able to answer large number of your questions, students. Any doubts? No, sir. Okay, then bye bye, and we'll meet you in our next class, which will be more interesting than this, students. Thank you very much for answering questions in such an intelligent way. Bye bye, and we'll see you in our next class. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you, students.